गुरुग्राम में 12 से 14 दिसंबर तक प्रज्ञानम स्कूल सेक्टर 65 में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सांशिंकान कराटे सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सांशिंकान इंडिया हेड सेंसेई यशपाल सिंह कालसी की मेजबानी में हुए इस सेमिनार का नेतृत्व सांशिंकान के संस्थापक सोके तामस वेबर ने किया, जो स्वीडन से विशेष रूप से भारत आए। इजराइल से आए प्रशिक्षकों ने भी आत्मरक्षा और क्राव मागा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। देश भर से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने किहून, काता, कुमिते और उन्नत आत्मरक्षा तकनीकों का गहन अभ्यास किया। सेमिनार के अंत में बेल्ट टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रतिभागी सफल रहे। यह आयोजन सांशिंकान इंडिया की बढ़ती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। Today we are deeply honored to have him with us, not only as a master, but as a mentor whose wisdom, presence, and dedication continue to elevate our journey. His guidance is a bridge to the deeper spirit of martial arts. Ladies and gentlemen, participants and parents, please welcome with respect and gratitude Soke Tamas Weber, the torchbearer of tradition, discipline, and the true warrior spirit. One alternative, we will work together. Okay, no, please. So everyone, thank you for listening, and I just wanted to tell you that we wanted to do an opening ceremony at 9 because there's a lot of folks. Some people reach late because they're staying far. So we have an opening ceremony starting right now, and there is a video we will start with, and later you'll see me doing some demonstration. So first we'll start with the video. I specially made it, and all the script is written by the coaches, that is me. So how I want everyone to be. So it's not something which we pick from YouTube. It is our work. So that in 4-minute video we try to teach you. If you learn something, that would be great for you. You are most welcome from media side. You are actually in the good town. But you are Grand Master of the words. Please tell me your name and tell me. My name is Tamas Weber, and I'm Swedish citizen and lives in Stockholm, capital of Sweden. And but I teach my own small dojo, small club, but also I'm invited to teach in many countries. And specifically, I was teaching the police forces and the SWAT units in several countries, in USA for instance, in Africa too, and of course Europe, all over Europe. And I was a military officer. Sir, now you are in Gurgaon, sir. The Indian students are in front of you. How to make the future in karate? The future of karate looks good in the way you see so many students, and interest for karate is not like it was once in several places in the world, but I see many children are training, and it's good for the kids. They are good at school, they work, they are forward in life. Sir, I am talking about the Indian women. They need to self-defense. How they learn and how they become self-defense? It's the same self-defense or karate. Karate is an art of self-defense. It's empty hand. The name is empty hand, system of self-defense. So for the kids it's very important because the situation everywhere today, even like in India, like it is in Stockholm, was very quiet once. But today, some part of Stockholm becomes dangerous. So the kids need to defend themselves. Please give a small message to the Indian students, young students. Yes. Please give a small message to the young students regarding the karate. The students, what they said, generally the people is not very well known, because today you have many kind of systems of self-defense who are marketing
their marketing as a self-defense, complete self-defense art, different kind. Personally, I improve them also. I don't think too many are good like karate. Most of them are not so very efficient, is what I believe. Because they are not based on, like karate is a scientific background, on the nerve system, on the bone system, on the sensitive part of the body, and the children is interesting for the children. Again, you are most welcome in Gurgaon, sir. Any India, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you to receive me. Thank you for the newspaper. I don't know if it's the television, the newspaper, but Sir, small word for regarding organizers. yes. Jaspal is a organizer. Say small word regarding this. But we started the friendship with Yashpal and Namika already. It was a very small activities. It was only the first time together with the teachers. It was 17 people. It was the first time I came. It was already about 15 years ago, and I like India because India is an old culture. He's a shining star of India. Yes, thank you. But it's an old culture, thousands of years of culture, and we have some inspiration without to know sometime from India. Also, generally in Sweden, we have several mathematicians who are from India. We have a lot of computer science experts who are coming from India, and we have students who go to the universities in Sweden who are from India. So I have few students from India in my dojo. It was always 1, 2, 3, it depends on the time. But we are not, I mean, sometimes you go to a country who has a very superficial culture. But in this, you have the root of a big part of the European and the Asian culture. So this is the model. And basically the karate, what they say, the karate has its origin in India. सर आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में देखिए, आज जो है हमारे लिए स्पेशल डे है। सनशिनकान इंडिया ने सोके थॉमस वेबर को बुलाया, जो कि 7 साल बाद आए हैं। और इंडिया में कोई भी कराटे के ग्रैंड मास्टर आना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ इवन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग देम डाउन। तो ये जो है स्पेशल है हमारे लिए, और हमने सोचा कि इस बार बहुत सारे लोगों को बुलाया जाए। एंड इवन आई एम प्राउडली सेइंग कि इंडिया से एक कोने से दूसरे कोने से लेकर सब जगह से लोग आए हैं। एंड अगर मैं बोलूँ तो इंडिया नहीं तो इजराइल से भी टीम आई है हमारी 11 नवंबर। सर बच्चों का कितना भविष्य सुरक्षित है, और अपने आप को बच्चे कराटे सीखकर कितना सुरक्षित रख सकते हैं, और सेल्फ डिफेंस क्यों जरूरी है? देखिए, सेल्फ डिफेंस हमेशा कोई भी सोसाइटी का पार्ट रहा है। कोई भी जैसे कि कोई राजा होता था, वो भी हमेशा अपनी सेना रखता था। तो हर एक सोसाइटी, हर एक देश के पास एक सेना होती है, जो अगर मैं बोलूँ सेना नागरिक की होती है, और हर एक नागरिक को अपनी सुरक्षा करने के लिए अधिकार है। और लॉ एंड ऑर्डर से पहले हमारे को अपनी सुरक्षा अपने आप करनी आनी चाहिए। सबसे पहला बेसिक्स जो है वो मार्शल आर्ट का सेल्फ डिफेंस है। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे देश की लड़कियाँ हैं, जिस हिसाब से हमारे देश का माहौल बन रहा है, हो रहा है, तो मुझे लगता है कि और सेल्फ डिफेंस हमें और इंट्रोड्यूस करना चाहिए लड़कियों के लिए। हमारे सभी स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल, ये अनिवार्य होनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की शिक्षा। प्लस मैं तो सोचता हूँ कि लड़कों को भी थोड़ा सुधार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है ग्रूमिंग, ताकि वो किसी लड़की के लिए आगे खुद भी खड़े हो सके, उनका बचाव भी कर सके असामाजिक तत्व के इस पर खिलाफ। आप हमारे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ताकि उन तक ये बात पहुँचे हमारे चैनल के थ्रू, और हर स्कूल में वो सेल्फ डिफेंस लागू? देखिए, हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस लागू तो है, पर प्रॉब्लम ये है उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। उसकी क्वालिटी क्या है, क्या नहीं है, ये सरकार नहीं देखती। सरकार ये देखती है कि हमने सेल्फ डिफेंस करा दिया, हो गया ख़त्म। अधिकारियों भी यही सोचते हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस कराया, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटे की क्लास से कुछ नहीं होता। तो
अगर सरकार ने सेल्फ डिफेंस सिखाना है तो परमानेंट स्कूल में कोच रखना चाहिए, ना कि प्राइवेट बाहर से ला के 1-1, 2-2 घंटे का कोच रखें। उससे कुछ नहीं होगा। उससे जो बीच के जो अधिकारी या और नीचे लोअर लेवल पे जो कोच है उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इवन अधिकारी या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो 500-500 कोच को हायर करके उनको सैलरी देते हैं। इस बात ये आपका कहने का मतलब है कि सरकार को इसकी वैकेंसी निकालनी चाहिए, प्रॉपरली Proper टीचर भर्ती करनी चाहिए और परमानेंट एम्प्लॉय कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, क्योंकि बीच में जितने जो आते हैं ना मीडिएटर, वो सारा पैसा खा जाते हैं, ना तो कोच तक पहुंचता है, ना बच्चे ठीक से सीख पाते हैं। सर युवाओं के पेरेंट्स भी आए हैं और युवा यहाँ पर पहुँचे, स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जिसको हम आपको बोलते हैं जेन ज़ी, तो ये जेन ज़ी बड़ी डायनेमिक है एंड मार्शल आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट है इनका। एंड इनके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि प्लान ए है, प्लान बी नहीं है, मतलब फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं करती जेन ज़ी। तो अगर आप मार्शल आर्ट सिखाओगे तो जो जेन ज़ी है ना हमारी, वो फेलियर के ऊपर राइज करना सीख जाएगी, क्योंकि ये जेन ज़ी बड़ी नाजों से पली हुई होती है ना। जैसे आप पेरेंट्स हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, बच्चा गिर गया, अरे कोई बात नहीं, रो रहा है उठा लो, पर नहीं, हमारे को यहाँ बच्चों को फेलियर से राइज करना सिखाना है और ये मार्शल आर्ट सिखाता है। सर जो बाकी कंट्री से आए हैं, हाँ जी, उनके बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए बाकी जो कंट्री से आए, इसराइल आपको पता है हमेशा युद्ध में ही रहा है। इसराइल कभी भी ऐसा नहीं रहा कि उसको कोई एक साल कोई ना छिड़े, तो उनके नागरिक भी वैसे ही हैं। तो ये जितने भी आए हैं, जितने भी आप इसराइल से देख रहे हो, ये सेल्फ डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं। इन्हें पता है अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इवन सुरक्षा ये नहीं कि कोई चोर चक्के से, इनको तो टेररिस्ट से लड़ना आता होता है एक सिविलियन को। इजराइल हथियारों का जन्मदाता है, पूरे वर्ल्ड में हथियार इजराइल से सप्लाई होते हैं। बिल्कुल। तो इसराइल में मैं अगर बोलूँ तो इनको सारे हथियार चलाने आते हैं। ये 11 लोग हैं, ये मिलिट्री में भी रह चुके हैं और जैसे हमारे देश में रॉ है, ये मोसाद के एजेंट है, कई लोग ऑलरेडी रिटायर्ड है, पर आपको बताएंगे नहीं ये। तो हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट आए हुए हैं। सो धन्यवाद।